Hi friends. So today in this video we are going to learn about CSMA-CD, the carrier sense multiple access collision detection. So this is the variant of CSMA protocol, or we can say it is the extension of CSMA protocol, which is a random access protocol, or it is a random access methodology to access the media. So what is CSMA CD? So CSMA CD basically, which stands for carrier sense multiple access collision detection, and the collision detection being is an extension of CSMA protocol, as we learned about CSMA protocol in last video. So the new variant of CSMA protocol is CSMA CD, and it is the extension of CSMA protocol, where the collision detection is the additional methodology which is added to CSMA. So what is the principle of a CSMA CD protocol? So in a CSMA CD protocol, when we talk about it is basically it creates the procedure that regulates the communication must take place in a network with a shared transmission medium. As we know, when we talk about random access method, so there are multiple stations, and multiple station can access the same medium. So how this sharing take place, so that there are the chances of collision will reduce or avoided. So basically this is the extension, and it regulates how to proceed, the basic thing. What is the basic difference between CSMA and CSMA CD? What is the extension? So it regulates how to proceed if collision occurs. In CSMA, it doesn't define what happens when there is a collision occurs. So in CSMA CD, it defines agar collision hua, if there is a collision, what we do. So when two or more nodes try to send data packets via the transmission medium or the bus simultaneously, and they interfere with one another, which means there is a collision. That means both the station needs to send data on the network, and the data packets collide on the shared medium. So according to the definition of carrier sense multiple access collision detection, we divide the definition in three parts. The first is carrier sense. So what it means: the carrier state detection makes sure that all network participants check whether the medium is currently free. Only then does the protocol initiate data transmission. It is similar to what happened in CSMA. That means कि अगर कोई भी स्टेशन को या कोई भी नेटवर्क पार्टिसिपेंट अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि मीडियम फ्री है अभी या नहीं है. जब तक मीडियम फ्री नहीं मिलेगा उसे, तब तक वो डेटा ट्रांसमिशन नहीं करता है. यानी जैसे ही मीडियम उसे फ्री मिला, ओनली कंडीशन protocol initiate data transmission, the medium is free, when free. The second term is multiple access. So what multiple access means? So several participant or station computers connected to the network to share the transmission medium. We have a single channel, we have a single medium, we have a single wire on which all the nodes are connected, all the computers or participants are connected. That's why it is called multiple access. The same thing what is in CSMA. Now the last two words, collision detection. So this CD stands, the collision detection is an extension of the original protocol and regulates how to proceed in case data packets happen to collide. So it is the very much important thing in CSMA CD protocol कि क्या होगा जब एक कॉलिजन होगा, और कॉलिजन के बाद क्या, व्हाट हैपेंस आफ्टर कॉलिजन. अगर एक कॉलिजन होता है, दो स्टेशन ने पैकेट्स ट्रांसमिट कर दिया सेम टाइम पे,
सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं तो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होगा तो उसके बाद क्या करना है. सो दिस मीन्स कॉलिजन डिटेक्शन. सो let's try to understand with this figure we have. So as we know, the CSMA CD protocol is used in Ethernet protocol. जो Ethernet protocol जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क आप आज देखते हो वायर्ड नेटवर्क्स, वो सारे के सारे Ethernet नेटवर्क होते हैं. मोस्टली लगभग जितने भी आप लोकल एरिया नेटवर्क देख रहे हो मोस्टली वो इथरनेट बेस्ड नेटवर्क होते हैं. और इथरनेट बेस्ड नेटवर्क में जो मीडिया एक्सेस के लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन. सो इन दिस फिगर यू कैन सी दैट स्टेप बाय स्टेप here we there are 4 station A, B, C, D and every station can access the medium. कोई भी स्टेशन हो वो मीडियम को एक्सेस कर सकता है बिकॉज दिस मीडियम इज शेयर्ड. और जब ये मीडियम शेयर्ड है तो कोई भी स्टेशन इस मीडियम को एक्सेस कर सकता है. जब मल्टीपल एक्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो एक ही मीडियम है और उसको एक टाइम पे ए और डी ने क्या किया है, सेम टाइम पे एक्सेस करने की सेम टाइम पे एक्सेस किया है. दिस रेड एरो डिफाइंस दैट ए एंड डी सेंस एट द सेम टाइम मीडियम. और दोनों को क्या मिलेगा, अगर एक ही टाइम पे अगर दोनों मीडियम को एक्सेस करेंगे तो मीडियम दोनों को करंटली अगर यहाँ पे भी कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो वो ब्लैंक मिलेगा, खाली मिलेगा, और दोनों क्या करेंगे, डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करेंगे. अब देखो जो थर्ड स्टेप है कॉलिजन क्या होगा, जब ए और बी दोनों ने सेम टाइम पे सेंस किया मीडियम को और दोनों ने पाया कि मीडियम फ्री है, दोनों ने क्या किया, डेटा पैकेट्स नेटवर्क पे भेज दिए. एक सर्टेन टाइम पे दोनों का पैकेट्स एक जगह पे आके कोलाइड करेगा. बेसिकली होता क्या है, यहां पे आप थोड़ा समझो कि जब भी कोई एक स्टेशन डेटा पैकेट्स भेजता है तो वो डेटा पैकेट्स जैसे ही भेजता है तो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स होते हैं, वोल्टेज होते हैं. तो ये दोनों साइड वायर के दोनों साइड पे प्रोपगेट होगा. और उसी तरीके से जब ए भेजेगा तो दोनों साइड पे प्रोपगेट होगा. और अगर मीडियम पे किसी और ने डेटा ट्रांसमिशन नहीं किया है दैट मीन्स वो जहां पे पहुंचना है वहां तक पहुंच जाएगा. लेकिन कंडीशन ये है कि जब ए और डी दोनों ने मीडियम पे सिग्नल प्रोपगेट किया तो एक सर्टेन जगह पे आके दोनों के जो सिग्नल है आपस में टकरा जाएंगे और इसी को हम लोग कहते हैं कॉलिजन. और जब ये सिग्नल्स आपस में टकराएंगे दैट मीन्स ये सिग्नल क्या है, कुछ वोल्टेज है, ये सिग्नल कुछ वोल्टेज है. और जब दो वोल्टेज आपस में आके टकराएंगे इज देयर इज अ कॉलिजन, तो वो जो वोल्टेज है आपस में कोलाइड होने के बाद वो कुछ और ही बन जाएगा. कोई सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस व्हेन द टू सिस्टम्स डेटा कैन बी कोलाइड. सो यानी अब ना ए का डेटा पहुंच पाएगा डेस्टिनेशन तक, ना डी का डेटा पहुंच पाएगा डेस्टिनेशन तक. So this is the collision. This is actually what CSMA said. So in CSMA CD, what happens? CSMA CD ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये है कि अगर कॉलिजन होता है, कॉलिजन होने के बाद क्या करना है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि फर्स्ट द स्टेशन मॉनिटर्स द ट्रांसमिशन मीडियम. मॉनिटर स्टेशन क्या कर रहा है, हर पूरे मीडियम को मॉनिटर कर रहा है. एज लॉन्ग एज दिस ऑक्युपाइड द मॉनिटरिंग विल कंटिन्यू. और ये लगातार तब तक मॉनिटरिंग चलता रहेगा जब तक ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, ऑक्युपाइड है. जैसे ही व्हेन द मीडियम इज फ्री, जैसे ही मीडियम क्या होता है, फ्री होता है फॉर अ सर्टेन टाइम इन इंटरफ्रेम स्पेसिंग, जिसको हम लोग कह रहे हैं सर्टेन टाइम, यानी इंटरफ्रेम स्पेसिंग कहने का मतलब कि इस दरमियान कोई भी स्टेशन अब डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, फ्रेम ट्रांसमिट नहीं कर रहा है. तो स्टेशन क्या करेगा, सेंड पैकेट, स्टेशन पैकेट सेंड कर रहा है. मीनवाइल द ट्रांसमीटर कंटिन्यूज टू मॉनिटर द ट्रांसमिशन मीडियम टू सी इफ इट डिटेक्ट्स एनी डेटा कॉलिजन. इफ नो अदर पार्टिसिपेंट ट्राइज टू सेंड इट्स डेटा वाया द मीडियम by the end of the transmission and no collision occurs, the transmission has been a success. That it means कि जब वो
कंटिन्यूअसली स्टेशन ने मीडियम को मॉनिटर करता रहा। जैसे ही उसे खाली टाइम मिला, एक मीडियम फ्री मिला, तो उसने अपने डेटा पैकेट्स को क्या किए, मीडियम पे फॉरवर्ड कर दिए। और अब फॉरवर्ड करने के साथ ही इसका काम खत्म नहीं हो गया। जब तक वो डेटा फॉरवर्ड करता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली मीडियम को चेक करता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार भेज दिया डेटा तो अब मेरा काम हो गया, क्योंकि चैनल फ्री था, डेटा पास हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, कॉलिजन फिर भी हो सकते हैं। सो इन दिस केस वो क्या करता है, हर बार वो स्टेशन चेक करता रहेगा ट्रांसमिशन मीडियम को कि कोई कॉलिजन तो नहीं हुआ, कोई दूसरा पार्टिसिपेंट तो ट्राई नहीं कर रहा है डेटा सेंड करने के लिए। और इस तरीके से अगर उसके ट्रांसमिशन के दरमियान कोई भी ऐसा कॉलिजन नहीं होता है तो ट्रांसमिशन क्या होगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर एक कॉलिजन डिटेक्ट होता है? कॉलिजन डिटेक्ट होता है मतलब डेटा ट्रांसमिशन, पहले तो हमने मीडियम को फ्री मिल गया, हमें फ्री मिलने के बाद हमने डेटा ट्रांसमिशन शुरू किया, लेकिन उसके बाद अगर कोई कॉलिजन होता है, अब आप सोच रहे हो ये कॉलिजन कैसे हो सकता है? तो ऑब्वियस है कॉलिजन ऐसा हो सकता है कि हमने सीएसएमए में पढ़ा था एन परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट और नन परसिस्टेंट। तो वो मेथड्स में क्या होते थे कि सर्टेन टाइम पे दोनों को फ्री मिलता है और दोनों स्टेशन डेटा ट्रांसमिशन पैकेट्स भेज देते हैं। इस कंडीशन में जो वल्नरेबल टाइम की वजह से, जो प्रोपगेशन टाइम था उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉलिजन हो सकता है। तो इसीलिए सीएसएमए सीडी में उस कॉलिजन को कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करते किया जाता, रेगुलरली बेसिस पे किया जाएगा जब तक कि डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट ना हो। सो इन द स्टेप 2, if however a collision is detected, the participant immediately interrupts the transmission and instead send an interference signal which is known as jam signal so that all other station can detect the collision. जैसे ही किसी स्टेशन ने एक कॉलिजन डिटेक्ट किया, वो इमीडिएटली अपना ट्रांसमिशन को रोक देगा। इमीडिएट इफेक्ट पे, जैसे ही एक कॉलिजन अकर हुआ, इमीडिएट इफेक्ट पे वो अपना ट्रांसमिशन क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। और स्टॉप ही नहीं करेगा, इसके अलावा एक जैम सिग्नल उस नेटवर्क पे फॉरवर्ड कर देगा ताकि बाकी जो कनेक्टेड स्टेशन हैं वो भी कॉलिजन को डिटेक्ट कर सके। इस दरमियान कोई दूसरा का, जैसे ही कि सिंपली यहां पे होगा कि जैसे ही वो अपना डेटा ट्रांसमिशन रोकेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगले स्टेशन को सेम टाइम पे मीडियम फ्री मिलेगा तो वो भी डेटा ट्रांसमिट कर देगा। तो उसको रोकने के लिए जैसे ही अपना ट्रांसमिशन को ये इंटरप्ट करेगा स्टेशन या नोड, वो एक जैम सिग्नल को भी फॉरवर्ड करेगा नेटवर्क पे ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके, यानी बाकी नोड्स को भी पता चल सके कि देयर इज अ डिटेक्शन। सो नाउ द पार्टिसिपेंट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जैसे ही ये काम होगा, जैम सिग्नल सबको मिल जाएगा, अब वो एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे, उसके बाद फिर से मीडिया को एक्सेस किया जाएगा और ये ट्रांसमिशन दोबारा शुरू कर पाएंगे। और ये बेसिकली एक बैक ऑफ एल्गोरिथम के थ्रू रैंडम टाइम को डिफाइन किया जाता है, जैसा कि हमने वहां पे सीएसएमए में देखा था कि जो पी परसिस्टेंट मेथड होता है कि वहां पे हमने एक टाइम स्लॉट रखा था और वो टाइम स्लॉट का जो टाइम था वो ग्रेटर देन होता था प्रोपगेशन टाइम से। तो यहाँ पे एक बैक ऑफ मैकेनिज्म यूज किया जाता है। सो नाउ द पार्टिसिपेंट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम विच इज नोन एज बैक ऑफ टाइम बिफोर ट्राइंग द ट्रांसमिशन अगेन, मतलब कि अगली बार डेटा ट्रांसमिशन को फिर से शुरू करने के लिए एक बैक ऑफ टाइम तक वो वेट करेंगे। द बैक ऑफ मस्ट बी रैंडम, और ये एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम होगा हर स्टेशन के लिए, ताकि रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम इसलिए है ताकि सेम टाइम पे फिर से दोबारा दो स्टेशन क्या कर सके, मीडिया को एक्सेस ना कर सके, सो दैट द नेक्स्ट कॉलिजन डजंट अकर स्ट्रेट अवे। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमने पढ़ा है कि कॉलिजन अकर्स, कॉलिजन हैपेंस। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग कॉलिजन? बेसिकली होता क्या है कॉलिजन? तो कॉलिजन क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ डेटा वेटिंग टू बी सेंट, ईच ट्रांसमिटिंग एनआईसी आल्सो मॉनिटर्स इट्स ओन ट्रांसमिशन।
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई स्टेशन डेटा पैकेट को नेटवर्क पे या मीडियम पे फॉरवर्ड कर रहा है, तो फॉरवर्ड करने के बाद वो निश्चिंत नहीं हो जाता, वो कंटिन्यूअसली मीडियम को चेक करता रहता है, कंटिन्यूअस चेक करता रहता है। तो कौन चेक करता है? तो हमारा जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो इन सारी कुछ चीजों को मॉनिटर करता रहता है। और अब क्या होता है कि अगर कॉलिजन वो ऑब्जर्व करता है, तो ये कॉलिजन बेसिकली है क्या? तो कॉलिजन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बताया है कि जो कोएक्सियल इथरनेट होते हैं, इथरनेट में भी कौन सा इथरनेट? जो कोएक्सियल इथरनेट होते हैं, जहां पे कोएक्सियल केबल यूज किया गया है। सो अगर वहां पे जो करंट 24 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा हो गया, एक्सेस करंट एबव व्हाट इज जनरेटिंग, मतलब कि जितना करंट हमने जनरेट किया, करंट जनरेट किस लिए किया? तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन अगर उससे कहीं ज्यादा है, लगभग ये 24 मिली एम्पियर से अगर ज्यादा होता है, दैट मीन्स एक कॉलिजन हुआ है। और एनआईसी इसको डिटेक्ट करता है कि अगर ये वोल्टेज लेवल जैसे ही इंक्रीज किया, दैट मीन्स देयर इज अ कॉलिजन। और जैसे ही कॉलिजन होगा, हमने अभी तुरंत समझा कि कॉलिजन होगा तो सिस्टम क्या करेगा, नोड क्या करेगा, ट्रांसमिशन को इमीडिएट इफेक्ट से क्या करेगा? स्टॉप करेगा। स्टॉप करने के साथ ही साथ वो क्या करेगा? डेटा की जगह अब वो एक दूसरा चीज ट्रांसमिट करता है, जो कि एक 32 बिट का जैम सीक्वेंस होता है। एक 4 बाइट जैम सीक्वेंस को क्या किया जाता है? फॉरवर्ड किया जाता है। जो आप यहां देख रहे हो कि ये जो जैम की बात की गई है, ये 32 बिट का एक जैम सीक्वेंस होता है, जो कि सारे नोड्स को भेजा जाता है, ताकि सारे नोड्स अब क्या करें? डेटा ट्रांसमिशन जो करना चाह रहे हैं या वेटिंग में है, वो रुक जाएं। और कब तक रुकेंगे? एक बैक ऑफ टाइम तक रुकेंगे। और वो बैक ऑफ टाइम क्या होगा? एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम होगा। सो यहाँ पे थोड़ा इस एल्गोरिदम से, सॉरी इस फ्लो चार्ट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप क्या हुआ कि स्टेशन क्या है? डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडी है। पहला स्टेप क्या होगा? चैनल को सेंस किया जाएगा। दूसरा स्टेप, चैनल अगर फ्री है, चैनल अगर फ्री है, कोई बात नहीं, क्या होगा? चैनल फ्री है तो डेटा ट्रांसमिशन क्या होगा? हो जाएगा ट्रांसमिट डेटा एंड सेंस चैनल। और ट्रांसमिशन के दरमियान भी क्या होगा? हमें क्या करना होगा? चैनल को सेंस करते रहना होगा। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि वो नोड जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली चैनल को सेंस भी करेगा। तो ये हुआ कि कंटिन्यूअसली अगर चैनल को सेंस करता जा रहा है और कॉलिजन नहीं डिटेक्ट हुआ डेटा ट्रांसमिशन के दरमियान में, तो आपका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुआ। और अगर उस दरमियान में अगर कॉलिजन डिटेक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट जैम सिग्नल, यानी वो 32 बिट का जैम सिग्नल फॉरवर्ड करते हैं और वेट करते हैं बैक ऑफ टाइम तक, यानी जो हमारे बैकअप स्ट्रेटेजी है या जो बैकअप एल्गोरिदम हम लोग यूज कर रहे हैं, उस तक हम वो काम हम यहाँ पे करेंगे और फिर एक नया अटेम्प्ट लेंगे। और चैनल अगर बिजी रहा, ये तो हुआ कि चैनल अगर फ्री था और हमने ये किया, लेकिन अगर चैनल बिजी रहा तो हम लोग फिर से दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, चेक करते रहेंगे, जो बार बार हम लोग सेंस कर रहे हैं ईच एंड एवरी टाइम। अभी चैनल फ्री है, नहीं है, फ्री है, नहीं है, फ्री है, नहीं है, फ्री है, नहीं है, फ्री है, हाँ है, तब ये सारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे चलेगा। तो जब हम लोग बात करते हैं सीएसएमए की, तो सीएसएमए इस केवल इतनी बात करता है, ये स्टेशन रेडी, सेंस चैनल, चैनल बिजी, इतनी बात करता है। लेकिन आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन अगर कॉलिजन होता है, तब क्या करना है, इसके बारे में सीएसएमए बात नहीं करता है। तो इसीलिए सीएसएमए सीडी को कहा गया है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ सीएसएमए प्रोटोकॉल। सो इसमें इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।